Hello everyone, good afternoon. Welcome to the day 7 session of Trader Yoda induction training session. And I'm extremely sorry that I have called you all in the weekend for the class. It is not justified that I am calling you all for the class in the weekend, but time and things have demanded like that. So sometimes it will happen like that. We will have to, if we are not able to manage the time in the daytime in the during the weeks, then we will have to put the class in the weekend. And I have already told, मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि वीकेंड की क्लास जो भी होगी उसमें अगर आप नहीं भी अवेलेबल हैं तो आपकी लीव्स उसमें काउंट नहीं होगी, बिकॉज आई एम डिस्टर्बिंग यू ऑन द वीकेंड, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी ऑन द वीकेंड. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. आप अवेलेबल हैं तो भी ठीक है. इफ यू आर नॉट अवेलेबल, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एनी टाइम यू वांट. अगर आप ड्यूरिंग द क्लास ऑल्सो अगर आप किसी इमरजेंसी की वजह से चले जाते हैं, यू कैन गो. नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू इफ द क्लासेज आर गोइंग टू हैपन इन वीकेंड. ओके. दिस जो पास्ट वीक है दैट हैज बीन टू हेक्टिक. बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है. कंटिन्यूअसली आई हैव बीन लाइक in the night I have been in hospital only because till the time my mother will be not back home, I will not get the mental peace. Even आप मेरी जगह आप भी होते तो आप भी यही, आपके साथ भी यही होता. तो मदर फादर को कुछ हो जाए तो लगता है कि जैसे अपने शरीर को चोट पहुंच गई. इट इज लाइक दैट. आई फील लाइक दैट. एवरीवन फील्स लाइक दैट ओनली. So the thing is that now my mother's condition is stable. Okay, she is recovering well, and we are hope. Just her fever is not coming down. Still, the fever is ranging between 100, 100, 102, and the whole hand, उसका पूरा दोनों हाथ, due to that cannula thing, because they are passing the drugs and medicine through the cannula, but sometimes the cannula is jammed. Again, they have to take out the cannula, and again they have to put another cannula in different hand. So her both hands have swelled, and see, well, the person who is in hospital admitted, only they do the suffering. And apart from that, I am also feeling too low. In just 1 week, I have hardly got sleep around 4 to 5 hours daily. I need a sleep of at least 8 to 10 hours daily. This is my schedule. Without that, I feel mentally too much disturbed. ये मेरे साथ होता है. Because being a trader, you need a sound sleep so that आपको अच्छा खासा you get mental peace to do whatever you want, है ना? तो शुरू से जो आदत लगी हुई है. So that's why you can feel that I am today too low. I am having too low energy. For that, I please forgive me if possible. Back to the things that I am hoping so. My mother will be available, will be coming home by Tuesday, most probably, or by latest by Wednesday. After that, everything will be on track, and the salary credit form has already been designed. Everything has been done. The team was not able to upload it yesterday because I get the time to approve it. So today or tomorrow I will do it itself, and you can fill the form. And whatever your doubts and query, whatever it will be, I will try to answer it by today or tomorrow. Any query you have, I don't think you will be having any query or anything. But still, if it is there, if there is anything, I will do it by tomorrow. I know we are behind schedule on our that soft copy thing, and that hard copy thing of bond I have already told you, and rest, that appointment, everything is ready. Just my mother got sick, so I was not able. Now the appointment letters are all ready. I have to just sign. You have the stamp is to be put, it has to be scanned, and it has to be sent to you on your mail. So everything is there. So we will try to complete it in the next week, and I will revise the deadlines for that. Okay. And apart from that, I hope you are enjoying the learning. I hope you are consistently putting your efforts for learning as much as you can. You are watching the recorded lecture sessions as much as you can. I will recommend some books also. You all start reading that. I hope that after 3 months, you are completely a new trader in your endeavor, not for us, not beneficial for us, but for your life also, so that your life gets completely changed and you are going to enjoy the best days of trading in your life after that. I hope all have completed their CAGR calculation. They all have their 10 sheets with them, and each sheet is having the target. I hope from August onwards. I'm trying that to start that thing from 1st August onward, whatever 40, 50, 60 candidates, whatever we get, we will make the group. Daily I will try from Monday to Friday, at least daily I will try that we complete our 2-3% target, and that's it. Okay, let me for in that on that we will have the detailed discussion next week. हम लोग उस पे detailed discussion next week में कर लेंगे. So apart from that, let's start our class without wasting further time. Okay. So if you feel like today I am having not that level of energy, I have already explained the reason. So
let's jump into our class. Okay, so today I'm going to talk about market psychology. I will not be able to answer any query at this moment of time. Please, if you have raised your hands, just lower it. I already told that we will discuss whatever it is by today or tomorrow. And tomorrow also, I will take the class. I will try my best efforts to take the class. If it is not possible, then forgive me. But I will try at least that 1 or 1.5 hour. I'm able to manage in the daytime because all the works are pending of entire week that has to be completed in this weekend. But I am not getting time to complete it because body is not allowing to do that. Totally exhausted. Okay. Anyhow, yeah. So yes. Everyone able to see the screen now? No issue. We can start now. Voice is clear. Recording is totally on track. You can see the screen. Okay, done. Huh. Okay, let's start now. So, market psychology. आपको पता है हम पहले अपनी साइकोलॉजी की छोड़ते हैं. लेट अस लीव आवर ओन साइकोलॉजी. हम ओन साइकोलॉजी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट and we will discuss a lot about it. Right now we will discuss about the market psychology. ठीक है, मतलब जो इंट्राडे स्टॉक मार्केट है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू ट्रेडिंग इन इंट्राडे लेवल ओनली. तो इंट्राडे स्टॉक मार्केट जो है, इसकी साइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इट. व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? ओके, सो द साइकोलॉजी बिहाइंड इट इज दैट मार्केट, आपको पता है, मार्केट ड्राइव्स ऑन व्हाट? इमोशंस. मार्केट इमोशन पे चलता है. ठीक है, मार्केट में इमोशन कौन लेके आते हैं? दो ही लोग लेके आते हैं, या तो बुल्स लेके आते हैं या फिर बियर्स लेके आते हैं. ठीक है, और इनके बीच का जो टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर जो है, ठीक है, दैट ड्राइव्स मार्केट टू गिव अस आइदर रैली और क्रैशेज. यू नो दैट. ठीक है, अगर हम इंट्राडे स्टॉक मार्केट की बात करें, इट इज ड्रिवन बाय इमोशंस. कैंडल्स क्या है? यू ऑलरेडी नो दैट. रेड कैंडल मतलब बियर, ग्रीन कैंडल मतलब बुल. तो कैंडल्स क्या है? सेंटिमेंट्स ऑफ मार्केट को एक्सप्रेस करते हैं. इमोशंस ऑफ मार्केट को एक्सप्रेस करने का जो जरिया है, 2000 कैंडल्स. ओके, सो इंट्राडे स्टॉक मार्केट में इफ वी टॉक अबाउट द मार्केट इमोशन, अगर हम मार्केट के इमोशन की बात करते हैं, तो इट हैज टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स. वन इज बुल, अनदर इज बियर. दोनों के बीच में एवरी डे देयर इज अ टग ऑफ वॉर टू विन, है ना. और अगर बुल जीत जाते हैं तो यू गेट रैली, इफ बियर जीत जाते हैं तो यू गेट क्रैशेज, है ना. दीज ऑल थिंग्स वी आर एबल टू एनालाइज विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन, जो हम फर्दर जाके स्टडी करेंगे. ऑप्शन चेन, इंडिया विक्स, many things are there, lot of things are there. So इनके बीच की जो इनके बीच का जो टग ऑफ वॉर है, उसका एनालाइज करने के लिए देयर आर टेक्निकल इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन, इंडिया विक्स, प्राइस एक्शन. सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट डिसाइड्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. ठीक है, तो वट एवर, रिगार्डलेस ऑफ द स्टाइल ऑफ एनालिसिस और सिस्टम एम्प्लॉयड बाई ट्रेडर्स, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको इंग्लिश में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. Regardless of the style of analysis or system employed by traders, market का primary aim क्या है? One of the primary aim of their trading endeavors is to understand the degree of control held by the bulls or bears at any given time. ठीक है, और फिर फर्दर प्रेडिक्ट करना who holds the power in distant future.
एक ट्रेडर के नजरिए से हम अगर देखें, जो हमारा ये ट्रेडिंग करते हैं, दिस ट्रेडिंग एंडेवर, ठीक है, हमारा मेन फोकस कहाँ होता है? देखो, अगर आप एक ट्रेडर हो, आप एक ऑप्शन बायर हो, आप एक ऑप्शन सेलर हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आने लग गया, जैसे मैं, आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे कभी कभी, सॉरी, टेलीग्राम पे कभी कभी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपडेट देता हूँ आपको कि अब यहाँ से बियर्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से बुल्स एक्टिव हो जाएंगे, या फिर दिस इज द रेसिस्टेंस जोन, दिस इज द दिस जोन, यहाँ पे अभी मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा होना चाहिए, एंड अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द टाइम मार्केट फॉलोज दैट। ठीक है, तो उसमें ये कैसे आया, हाउ, दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इन दिस मार्केट। अगर आप ये सीख गए ना, यकीन मानो आप फोड़ दोगे। फिर तो कोई दुनिया में माइका लाल नहीं है जो आपका हाथ पकड़ ले। ठीक है, नो वन इज गोइंग टू कैच यू इन दिस, आप रियली फोड़ दोगे। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा, है ना। डेटा कैसे बनता है, डेटा कौन बनाता है? डेटा रिटेलर्स बनाते हैं, एफ आई आई बनाते हैं, और डीआईआई बनाते हैं। ठीक है, मैं डेटा रीडिंग भी आपको बताऊंगा कि कैसे डेटा को आप रीड करते हो। ठीक है, कैसे ऑप्शन चेन से डेटा को आप मैच करते हो, कौन कितना बाइंग करके गया, कौन कितना सेलिंग करके गया, फ्यूचर में किसने बाइंग की, किसने सेलिंग की, जो, क्योंकि जो फ्यूचर में हो रहा होगा वो प्रेजेंट दिखाएगा। ठीक है, तो लाइक सपोज कीजिए अब क्या हो रहा है, अभी जो मैं मार्केट का पैटर्न देख पा रहा हूँ करेंटली, ठीक है, मार्केट अगेन, अपना मार्केट इज गोइंग फॉर अ मैड बुल रन। ठीक है, बट फ्यूचर्स पे अगर ध्यान दें तो नाउ जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग बिग मनी है, दे आर हैविंग, दे आर स्टार्टिंग टू कट देयर पोजीशंस, मतलब वो अपने पोजीशंस को अब कट कर रहे हैं। बट दे हैव बोथ द क्वांटिटीज, उन्होंने पुट भी सेल किया हुआ है, उन्होंने कॉल भी सेल किया हुआ है। ठीक है, डीआईआई उन्होंने पुट भी बाई किया हुआ है, उन्होंने कॉल भी बाई किया हुआ है, बट धीरे धीरे दे आर लूजिंग ऑल देयर व्हाट, कॉल क्वांटिटीज, वो अपने कॉल की जो क्वांटिटीज है उसको अब धीरे धीरे हल्का कर रहे हैं। दैट गिव्स द डायरेक्शन दैट ओके नाउ मार्केट इज समडे, आपको क्या लगेगा मार्केट, और अपना मार्केट ये नहीं है कि एक बार ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ इट विल बी गिरिंग, वो गिरेगा, बाउंस भी देगा, फिर गिरेगा, फिर बाउंस देगा, फिर गिरेगा, फिर बाउंस देगा, इस तरीके से गिरेगा, रुक रुक के गिरेगा। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलने देगा, और एक दिन इतना खतरनाक गिर जाएगा कि सब स्वाहा। है ना, तो जो भी पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा है, इफ यू आर गेटिंग 50 60 70% प्रॉफिट, लाइक इन द स्टॉक, लाइक इक्विटी, इफ यू इन्वेस्ट, यू शुड बुक इट, है ना। बिकॉज हम नियर फ्यूचर में वी आर गोइंग टू बी अराउंड द नेक्स्ट टॉप, है ना, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनता है ना, एक टॉप दूसरा टॉप फिर नाउ थर्ड टॉप की तरफ हम जा रहे हैं। एंड बहुत जल्द, मैं ये नहीं कहूंगा कब, क्योंकि अगर मैं वो कह दूं तो आई एम लाइक अ गॉड, तो बहुत जल्द वी आर गोइंग टू सी द रिवर्सल, एंड दैट रिवर्सल इज गोइंग टू बी वेरी बिग, है ना, मतलब आपकी रूह और आत्मा दोनों कांप जाएगी जब वो रिवर्सल आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, किस दिन आएगा, नो वन नोज, बट जिस दिन आएगा उस दिन इट विल क्रिएट हैवॉक इन दिस मार्केट। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो ये सेंटिमेंट मैं कैसे समझ पा रहा हूँ, डेटा के हिसाब से समझ पा रहा हूँ, ऑप्शन चेन के हिसाब से समझ पा रहा हूँ, कैसे क्या मार्केट में चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो यही सारी चीजें आपको भी सीखनी है। अगर आप एक बीइंग अ ट्रेडर, अगर आप मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड समझ जाते हैं, ट्रेंड समझ जाते हैं, ट्रेंड किधर है, मतलब क्या डायरेक्शन किधर है, 70% काम तो यहीं पे हो गया। आपको पता है डायरेक्शन मार्केट का डाउन साइड है, अब बस आपको आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स को टूटने का वेट करना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे पता चलता है? वो लाइन जहां पे कंसिस्टेंटली मार्केट बार बार आके क्या कर रहा है, या तो वो सपोर्ट ले रहा है, या वो लाइन जहां पे वो बार बार आके कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है। जितना ज्यादा बार एक ही लाइन पे कंसिस्टेंटली वो बार बार सपोर्ट या रेसिस्टेंस ले रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगा कि 3D चार्टिंग में प्रॉपर आप कैसे फिर टाइम को देखते हो। अब बिगर टाइम फ्रेम पे जो आप ट्रेंड लाइन बना रहे हो उस पे मार्केट अगर आप ट्रेंड में है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जहां पे आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे तो फर्दर वहां पे आप ट्रेंड कैसे देखोगे, बाइंग सिग्नल कैसे जनरेट करोगे, सेलिंग सिग्नल कैसे जनरेट करोगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। ठीक है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट बीइंग अ ट्रेडर, चाहे वेदर यू आर ट्रेडिंग टुडे, अगर आप आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप 10 ईयर्स के बाद करेंगे, या फिर इवन आप 20 ईयर्स के बाद करेंगे, बीइंग अ ट्रेडर यू शुड ऑलवेज बी नोइंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट इन एडवांस। आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, एडवांस में,
एंड यू ऑल नो दैट मार्केट इज अ जीरो सम गेम। मार्केट जो है वो जीरो सम गेम है, किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को लॉस होगा। ठीक है, इट इज अ जीरो सम गेम। और जो यहाँ पे ट्रेंड समझ जाएगा, द दैट पर्सन हु विल अंडरस्टैंड द ट्रेंड, क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कैंडल्स, ये सब आपको एक हिंट देंगे। ठीक है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब आप सारी चीजों को समझने लगोगे, देखने लगोगे, एनालाइज करने लगोगे, आपको अपने आप आएगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट इज गोइंग टू डू समथिंग। आपको अपने आप यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योर सिक्स्थ सेंस, वो कहते हैं ना, छठी इंद्रियां जो हैं वो आपकी खुलनी शुरू हो जाएंगी। यू विल बी हैविंग योर सिक्स्थ सेंस डेवलप्ड लाइक दैट। यू विल स्टार्ट प्रेडिक्टिंग मार्केट, और जिस दिन आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से 90% भी मार्केट काम करने शुरू कर गया, देन नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। 10% तो धोखा फिर भी होगा, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, मेरे साथ भी होता है, वो हमेशा होगा। तो देयर योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट इज गोइंग टू सेव यू। तो वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जो है वो आपको बचाएगा। ठीक है, दिस इज द थिंग दैट यू विल हैव टू ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ये जो है आपको हमेशा अपने दिमाग में यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ठीक है, अब फर्दर तो मैंने आपको क्या बोला, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है उससे डिपेंड नहीं करता है, वट एवर इज योर ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, वट एवर इज योर ट्रेडिंग स्टाइल और एनालिसिस ऑफ मार्केट, या फिर जो आपने कोई सिस्टम, जो ट्रेडर्स बिठाते हैं, सिस्टम बिठाते हैं, सिस्टम मतलब क्या, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स, मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, इन सब का प्राइमरी एम क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी एम? What is the primary aim? The primary aim is to understand the degree of control held by bulls or bears at any given time. The primary aim कि मार्केट पे किसका कंट्रोल है अभी, बुल्स का या फिर बियर्स का। कौन मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, कौन मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। ठीक है, और नियर फ्यूचर में, डिस्टेंट फ्यूचर में, हु इज गोइंग टू कंट्रोल दिस मार्केट, कौन इस मार्केट को कंट्रोल करेगा, बुल्स करेंगे या बियर्स करेंगे, यही तो है। इतना समझ गए आप, आपने कोड, चीट कोड तैयार कर लिया। वो बोलते हैं ना, यू हैव सॉल्व द कोड, आपने कोड तैयार कर लिया है। आपने, द कोड इज रेडी नाउ, यू आर रेडी टू शैटर द रिकॉर्ड्स, है ना। तो लाइक दैट द योर कोड इज रेडी। अब आपका कोड रेडी है, अब आप चीजों को आगे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, दैट दिस इज द कोड दैट यू हैव टू ब्रेक। यही एक कोड है जो आपको ब्रेक करना है। अगर आप ये तोड़ने में कामयाब हो गए, मीन्स यू आर गोइंग टू फ्लाई हाई, है ना। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे, तो जैसे आप जब ट्रेड करते हैं, अभी तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट व्हेन आई एनालाइज, लाइक वीकली एनालाइज मैं कैसे करता हूँ, आई विल गो फॉर दी, सबसे पहले दैट मंथली चार्ट। monthly chart पे I will see the trend pattern, different trend lines will be there. Again I will go on weekly chart, वीकली चीज क्या कह रहा है, लाइक पिछले वीक के हाई को हम तोड़ पाए या नहीं, उसके हम कितने दिन से किस वीक के रेंज में है, दीज थिंग्स वी हैव टू एनालाइज। देन वी गो ऑन डेली चार्ट, डेली चार्ट पे क्या क्या बना, किस दिन कौन कौन सी कैंडल बनी। डेली चार्ट यू हैव टू सी द कैंडल। ठीक है, और जिस दिन डेली चार्ट पे आपको शूटिंग स्टार, मारी बोजो टाइप या कुछ है, जो फेमस कैंडल्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बनते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग वेरी बिग इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन लाइक दैट। आप उसको इजीली फिर प्रेडिक्ट कर पाएंगे, एंड देन योर प्रॉपर सेटअप विल कम, है ना, जहां पे आप डेली जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लाइक योर एंट्री एंड एग्जिट विल बी इन 15 मिनट, योर एनालिसिस विल ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस विल बी ऑन आवरली टाइम फ्रेम। ओके, and the bigger time frame will be your moving average, like that you can do the, you will have to, like that you will have to trade। उसी तरीके से फिर आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है मार्केट में, ठीक है, मार्केट की एक बहुत, मतलब एक आदत है, देयर इज अ हैबिट जो सबको बर्बाद करती है। हम ट्रेडर्स जो होते हैं, हम ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वी फॉलो द क्राउड, वी फॉलो द क्राउड, हमारा ये नेचुरल डिजायर है। ठीक है, जैसे अभी चल रहा है ना, अभी जैसे कुछ लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बेच दिया होगा, ठीक है, प्रॉफिट निकाल लिया होगा। अब फिर कल बाउंस आ गया, फ्राइडे को जैसे बाउंस आ गया, सबको लगा होगा अरे यार मार्केट तो फिर अगेन इट इज गोइंग टू गिव द बाउंस, इंडियन मार्केट इज टू स्ट्रांग, इट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन, ऐसा होगा।
तभी तो भाई आपका पैसा निकलेगा नहीं, तभी तो बड़े लोग पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने एक बार बिग मनी जो है, जो बिग शार्क्स हैं, हम उनसे लड़ जीत नहीं सकते, ये तो तय है। वी आर नॉट गोइंग टू विन द वॉर विद देम, इट इज इम्पॉसिबल यार। उनके पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हैं। कहाँ हम आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10,000 15,000 1 लाख 2 लाख वाले उनसे जीत पाएंगे? कभी नहीं। ठीक है, जैसे जंगल में शेर होता है, लायन। ठीक है, लायन जो है वो शिकार करके लाता है, ही हंट्स। ठीक है, उसके शिकार पे फिर उसके उसके शिकार पे कौन कौन डिपेंडेंट है? उसके शिकार पे हाइना डिपेंडेंट है। उसके शिकार पे फिर और कौन डिपेंडेंट है? जैकॉल, जैकॉल जो होते हैं ना, जैकॉल डिपेंडेंट है। उसके उसके वुल्फ डिपेंडेंट्स हैं। फिर जो छोटे छोटे आपके जितने भी मतलब क्या होते हैं, माइस जैसे चूहा डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक साइकिल है। फिर बर्ड्स डिपेंडेंट हैं, फिर उसके बाद एंड्स डिपेंडेंट हैं, उसके बाद फिर माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट हैं, उसके बाद इस तरीके से पूरा एक साइकिल है। दैट नेचर चेन इज गोइंग ऑन, ये तो आपको इजीली समझ में आता है। उसी तरीके से मार्केट भी है। ठीक है, आपको इसको इस तरीके से समझना है कि दिस इज द मार्केट, ये मार्केट है। यहाँ पे जो बिग मनी है, यहाँ पे जो बिग मनी है दैट इज लायन, वो लायन है। ठीक है, जो मार्केट से खींच के चीजों को लेके आ रहा है। अब इस पे नीचे बहुत सारे लोग नीचे नीचे डिपेंडेंट हैं इस तरीके से। ठीक है, और सबसे नीचे हम आते हैं, वी आर दी रिटेलर्स। हम अपने आप को जंगल की भाषा में मान सकते हैं कि वी आर माउसेज, हम चूहे हैं। ठीक है, हमें बहुत बड़ा एक मीट का चंक, बहुत बड़ा टुकड़ा रखा हुआ है। हमें बस दौड़ के जाना है, उसमें से एक टुकड़ा काटना है, भाग के आना है, बस यही काम करना है। अगर हम रुकेंगे तो शेर की नजर इस हम पे पड़ेगी, वो हमें मार के खा जाएगा। ठीक है, दैट इज द वे मार्केट वर्क्स लाइक, इसी तरीके से मार्केट काम करता है। और आपको भी इसी तरीके से इसमें अपने आप को इसी मोनोपोली के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप गए, आप एक टुकड़ा लेके आ गए, फिर आपको अपॉर्चुनिटी दिखी, फिर आप गए, फिर एक टुकड़ा लेके आ गए, फिर आपको अपॉर्चुनिटी दिखी, फिर गए, फिर एक टुकड़ा लेके आ गए। ठीक है, अब आप 3 टुकड़े लेके आ गए हैं, आपका पेट भर गया। अब आप सोच रहे हो नहीं, थोड़ा सा और रिस्क लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कब रिस्क लोगे? अब आप रिस्क लोगे अपने टुकड़ों पर। ठीक है, ना कि अपने ओरिजिनल कैपिटल पे। लाइक दैट, दिस आर द वेज इन विच यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो बिग मनी है। आप एक बार बिग मनी की साइकोलॉजी को समझ गए, जो इतना समझना आसान काम नहीं है, क्योंकि बिग मनी को एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे कितना मैक्सिमम ट्रेड लगा हुआ है, कहाँ पे किसका कितना मैक्सिमम पैसा लगा हुआ है, कहाँ पे मैक्सिमम एसएल्स लगे हुए हैं, कौन से कॉल पुट में सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है, उनको हर चीज पता है। आप उनसे नहीं जीत सकते। यू आर नेवर गोइंग टू विन दैट वॉर विथ वेन। ठीक है, यू विल हैव टू एक्ट इन अ वेरी क्लेवर वे। है ना, तो हम बोलते हैं ना कि अब मार्केट का पैटर्न चेंज हो गया है, अब मार्केट इज वर्किंग समथिंग वेरी डिफरेंट। मार्केट अब अलग तरीके से काम करती है, तो यू विल हैव टू इवॉल्व लाइक दैट। आपको उसी तरीके से इस मार्केट में आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। इन दैट वे यू कैन विन दिस वॉर विद द मार्केट। मतलब आपको वॉर यहाँ थोड़ी जीतना है, मुझे तो अपना CAGR कंप्लीट करना है। मैंने तो 10 साल की मेहनत अपनी, सारा ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। उस 10 साल में ईच ईयर डिवाइडेड into each month and each month divided into each day, बस यही तो काम है। हर दिन 3% का टारगेट फिक्स है, 3 टुकड़े लेके आने हैं मार्केट से। अगर मार्केट अच्छा है तो 3 मिल गया, नहीं अच्छा है तो 2 पे ही खुश हैं, बाद में उस 3 की रिकवरी हो जाएगी किसी दिन। है ना, तो इट इज लाइक दैट, यू विल हैव टू वर्क लाइक दैट। हमें तो अपना बस ये गोल दिख रहा है, ये देख गोल में जो मैंने पीछे आपको सिखाया है, जो गोल और जो मेरा टारगेट है वो तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है, हमें तो बस उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, हमारी मंथली शीट जो है वो डेली शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, जुलाई में लाइक अगस्त 1 से हमने अपने आप को तैयार किया कि हम 1 लाख के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, डेली 3% बनाएंगे। देन स्टार्टेड अगस्त 1, टोटल 2800 कमाया। सेकंड, मान लेते हैं 1600 कमाया। थर्ड, मान लेते हैं उस दिन 2200 कमाया। लाइक दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग दिस, इस तरीके से आप टुकड़े लेके आ रहे हो। ठीक है, आपको वहां बैठ के उनसे लड़ना नहीं है, यू डोंट हैव टू फाइट देम। और हम ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है?
व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू बीइंग एज अ ट्रेडर? हर ट्रेडर जो जिसको बिग मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिसका थॉट डेवलप हो गया, जिसका ट्रेंड प्रेडिक्शन वगैरह जिसको समझ में आ गया, वो एक अलग ट्रेंड पे चलते हैं। उनका पैटर्न, उनके सोचने का तरीका, उनकी चीजें, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट जो अभी नए नए हैं, बिगनर हैं, वो क्या करते हैं? वी ऑल दोज ट्रेडर्स हैव द नेचुरल डिजायर, उनकी जो दिली मतलब आत्मा की जो इनकी इच्छा है, टू फॉलो द क्राउड। जो क्राउड कर रहा है वही करो, टू फॉलो द क्राउड। ठीक है, और जब वो आप क्राउड के साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो जो चीज आपको क्लियरली दिखनी चाहिए वो दिख नहीं पाती। अभी के ट्रेंड में क्या हो रहा है? मार्केट गिरता है, फिर एक बम जंप ले आता है, फिर गिरता है, फिर एक जंप ले आता है। तो लोगों को लगता है अरे अपना मार्केट तो बहुत स्ट्रांग है, गिरने के बाद बाउंस दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंसिस्टेंटली लेके जा रहा है सबको। ठीक है, सारे लोगों को बिठा रहा है अपने ऊपर, आओ बैठो मेरे साथ, बैठो 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 बैठो, सब लोग बैठते चले जाओ। आप हर दिन सोचेंगे अरे ये गिरता है फिर बाउंस कर देता है, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, सेल द सेल द बाउंस, सेल द बाउंस, सेल द बाउंस, बाय द डिप, सेल द बाउंस, बाय द डिप, सेल द बाउंस। एक दिन क्या करेगा? ऐसा उठा के पटकेगा आपको कि आपकी पूरी कमर तोड़ देगा। ठीक है, इतना जबरदस्त तरीके से आपको पटकेगा कि आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में इट विल बी इवेपोरेटेड, वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रेडर का नेचुरल डिजायर होता है क्राउड को फॉलो करना। क्राउड को फॉलो करना इन द सेंस, आपको चार्ट पे दिख रहा है भाई सब लोग बस मार्केट तो बढ़े ही जा रही है, सब तो सब के सब बस उसमें पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखो, आप जिस दिन यू स्टॉप फॉलोइंग द क्राउड, दैट डे यू आर गोइंग टू बी अ गुड ट्रेडर, एंड दैट डे, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू प्रिंट हेवी अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, जिस दिन आप क्राउड को फॉलो करना बंद कर देंगे, उस दिन के बाद से आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, और फिर आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो बीइंग अ ट्रेडर, आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी। कौन भारी है, ट्रेंड को समझना है। ठीक है, ब्रॉडर ट्रेंड को समझना है, अपने सारे एनालिसिस को लगा के डिस्टेंट फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करना है, ना कि क्राउड को फॉलो करना है। अभी इंडियन क्राउड क्या कर रहा है? पोर्टफोलियो पे पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है, बाई पे बाई किए जा रहा है। ठीक है, स्टॉक पे एकदम भर भर के सारी चीजों पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। उनको तो लग रहा है मार्केट तो 60,000 जाएगा, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में तो हर हाल में 25 25 इसी साल में 30,000 टच कर देगा। ठीक है, लोग अपना पोर्टफोलियो बनाए जा रहे हैं, पोर्टफोलियो में उनको 80 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, बट वो बुक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस 80 लाख खर्च कैसे करेंगे उसका सपना देख लिया है, और बहुतों ने खर्च भी कर दिया है। लेकिन उनको ये चीज रियलाइज नहीं है कि जो दिखता है वो आपका प्रॉफिट नहीं है, जो बुक होके आपके डीमैट अकाउंट होते हुए सेविंग्स अकाउंट में पहुंच जाएगा वो प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसी तो हालत है। आता हुआ प्रॉफिट लोग छोड़ छोड़ देते हैं वेट करने के चक्कर में। एक दिन क्या होगा, वही पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो लाल लाल हो जाएगा, इट विल बी ब्लड रेड। तब उनको लगेगा ओह काश आई वुड हैव बुक्ड दैट, क्या काश मैंने उसको बुक कर लिया होता। ठीक है, आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो मिल रहा है वो लेना है, छोड़ना नहीं है। जो भी मिल रहा है वी हैव टू टेक इट, है ना। हम क्या करते हैं, उल्टा देने की कोशिश करते हैं, अरे 100 200 क्या बुक करेंगे यार, व्हेन आई विल गेट 100 100 100 100 1000 2000 लाइक दैट आई एम गोइंग टू बुक। ठीक है, तो ये छोड़ने की जो मानसिकता है, दिस ऑलवेज हर्ट्स अस, ये हमें हमेशा तकलीफ देता है, हमेशा हर्ट करता है। ठीक है, तो हमें एज बीइंग अ ट्रेडर वी हैव टू लुक एट हाउ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल फाइनेंस प्रोपेल बुल एंड बियर मार्केट। हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। अपनी साइकोलॉजी तो समझनी ही समझनी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट ट्रेंड। हम मार्केट में एक एग्जैक्ट ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सके कि मार्केट किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मार्केट साइकोलॉजी जो मैंने आपको बताई, इसका मोरल क्या है? इसका मोरल आप एक लाइन में मुझे बताओ, व्हाट इज द मोरल ऑफ इट? सिंपल है, इसका मोरल है डोंट फॉलो द क्राउड। डोंट फॉलो द क्राउड, यूज योर ओन एनालिसिस। दुनिया चीख चीख के बोल रही है बाई करो बाई करो बाई करो, आप उसके अगेंस्ट सेल करो सेल करो सेल करो। अब ये नहीं कि सेल करने बैठ जाओ, अपने मोमेंट का वेट करो, जस्ट वेट फॉर योर मोमेंट्स। मार्केट
जब देने पे आता है ना तो आपको 1 साल का प्रॉफिट एक दिन में देके चला जाएगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, आप जितना 900 क्वांटिटी में बुक नहीं कर पाते हो प्रॉफिट, उतना 250 क्वांटिटी में बुक करके निकल जाओगे एक दिन में जब वो देने पे आएगा। सो वेट फॉर योर लेवल्स। ठीक है, जब तक मेरे लेवल्स पे आएगा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। ठीक है, जब तक मेरे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसेज को टच नहीं करेगा, जब तक मेरे टाइम और टाइम फ्रेम पे आके वो उस चीज को टेस्ट नहीं करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू वेट। वेट, वेट, आई एम जस्ट गोइंग टू वेट। ठीक है, वेट एंड वॉच। आप देखोगे जंगल में अम, शेर घंटों झाड़ियों के पीछे स्टिल एकदम मूर्ति की तरफ बैठा रह जाता है, इवन फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि उसको अपना पेट भरना है। लाइक दैट यू विल हैव टू वेट 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 वेट। पहले मैं दिन भर में, जैसे बीइंग अ न्यू ट्रेडर, जैसे ही मार्केट खुलता था 9:15 होते ही, ठीक है, बस मार्केट में जंप। ठीक है, चाहे जो, और बस उसके बाद बस अगर लॉस में है तो आप पूरे दिन बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब आएगा प्रॉफिट में। वो और लिए जा रहा है और लिए जा रहा है और लिए जा रहा है, सब खत्म करके चला गया। मार्केट में अगर जिस दिन किस्मत आजमा रहे हैं ना, गैम्बल कर रहे हैं, घुस गए, घुसते ही प्रॉफिट दिख गया, प्रॉफिट तो ज्यादा बुक कर नहीं पाते, प्रॉफिट बुक किया, अब बड़ी खुशी हुई, अब लगता है इसको और बड़ा बनाते हैं, और बना बनाते 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 मान लीजिए 2,000 का टारगेट था, 6,000 बन गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पहले 100 क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर 200 किया, उसी को 300 किया, उसी को 500 किया, अब एक ही बार में पूरा का पूरा 600 क्वांटिटी से ट्रेड, पूरा कैपिटल एक बार में, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। लो क्या होता है, जो आपने 6,000 कमाए थे वो तो गए ही गए, साथ में वो आपका 50 60 70% कैपिटल भी उड़ा के ले जाता है। इट हैपेंस एवरी टाइम। साइकोलॉजी है, लाइव मार्केट में अपनी साइकोलॉजी से लड़ना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जो आपको करना होता है। ठीक है, तो आई होप मार्केट साइकोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मार्केट विल प्ले विथ योर इमोशन। मार्केट आपके इमोशन से खेलेगा। ठीक है, मार्केट इज गोइंग टू प्ले विथ योर इमोशन। मार्केट क्या है, व्हाट इज मार्केट? Market has two constituents. One is organized crowd, which consists of big money, FIIs, DIIs, ओके, बिग प्लेयर्स जो आप कह लीजिए, इसी में सब आ गए। दूसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड। डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड जो कि किसका है, रिटेलर्स का है। रिटेलर्स क्या है, इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, और इनका सोल जो टारगेट है वो क्या है, व्हाट इज द सोल कॉमन पर्पस? ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड है, इसका कॉमन पर्पस क्या है? इसका कॉमन पर्पस है बस ट्रेंड को पहचानना, ट्रेंड को एसरटेन करना, और वहां से फिर डायरेक्शन को पहचानना, और वहां से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना। ठीक है, वहां से प्रॉफिट को कमाने की कोशिश करना, डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड में यही है, सबकी कोशिश यही है। ठीक है, बट दिक्कत कहाँ आती है, आपको दिक्कत ये आती है क्योंकि क्राउड जो है, जो डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज्ड है किससे, इंडिविजुअल्स से। हर इंडिविजुअल की थॉट अलग है। ठीक है, उनका इमोशन अलग है, उनकी साइकोलॉजी अलग है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें तो मार्केट को हम सिर्फ एक एक फॉर्म में समझ सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड का एक पूरा समूह है। ठीक है, देयर इज अ हर्ड ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड व्हिच मेन टारगेट इज टू एसरटेन द ट्रेंड, ट्रेंड को पहचानना, ट्रेडिंग के डायरेक्शंस को पहचानना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग डिसीजंस लेना, और अल्टीमेटली उससे प्रॉफिट निकालना। बस इस डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनके थॉट्स, जिनके ट्रेडिंग का स्टाइल, जिनकी साइकोलॉजी, जिनके इमोशंस कंप्लीटली क्या है, अलग अलग है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, उनके उनका जो ऑप्टिसिज्म है, उनका जो प्रीमिसिज्म है, दोनों अलग है। उनमें किसी हर इंडिविजुअल में होप भी है, हर इंडिविजुअल में फियर भी है।
ठीक है, ये सारे के सारे एक ट्रेडर में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप सोचिए इंडिया में कितने ट्रेडर हैं, कितने करोड़ ट्रेडर हैं जो इस टाइम पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और दिस ऑर्गेनाइज क्राउड, मतलब हम ऑर्गेनाइज क्राउड की बात करें तो बिग मनी है, एफआईआई है, डीआई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उनका भी यही है, उनका भी यही है। ठीक है, तो प्राइमरी टारगेट क्या हो जाता है, व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट? प्राइमरी टारगेट हो जाता है इन दोनों का, जो क्राउड है उसका प्राइमरी टारगेट क्या है, एक दूसरे के इमोशंस को क्रश करना। आप होप में हो तो सामने वाला फियर में है। ठीक है, वो आपके इमोशन को क्रश कर रहा है, आप उसके इमोशन को क्रश क्रश कर रहे हो। अगर होप वाले ने फियर वाले के इमोशन को क्रश कर दिया तो क्या होगा, बुल जीत जाएगा। अगर फियर वाले ने होप वाले के इमोशन को क्रश कर दिया तो क्या होगा, बियर जीत जाएगा। अल्टीमेटली सबका जो मोटिव है वो तो पैसा ही कमाना है। एवरीवन्स मोटिव इज टू जस्ट अर्न मनी। ठीक है, सबको पैसा कमाना है, यहाँ पे टग ऑफ वॉर इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन में, कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक एफआईआई है, चाहे वो एक एमआई डीआईआई है, चाहे वो एक रिटेल इन्वेस्टर है, चाहे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, कोई भी है, उनका प्राइमरी गोल क्या है, टू मेक द सेंस ऑफ दिस क्रश, है ना, ऑफ इमोशंस, मतलब सामने वाले के इमोशंस को तोड़ना। ठीक है, बाई इवेलुएटिंग द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट क्राउड। सामने वाला अगर सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके इमोशंस को तोड़ना और मार्केट को नीचे लेके जाना, तभी तो पैसा बनेगा। आप लोग, आप एक आदमी हो, मेरे सामने बैठे हो, हम दोनों बैठे हुए हैं, हम दोनों के बीच में यही लड़ाई चल रही है कि कौन मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, कौन नीचे लेके जाएगा। आपका इमोशन कह रहा है, आप इमोशन हो कि नहीं मैं ऊपर लेके जाऊं, मैं बोल रहा हूँ ना ना मैं नीचे लेके जाऊंगा। जिसके पास ज्यादा मनी पावर होगा वो मार्केट को खींच के ले जाएगा। तो मैंने आपको इमोशनली क्रश कर दिया ना। ठीक है, तो दिस इज द सेंस ऑफ मार्केट। मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू प्ले विथ योर इमोशंस। मार्केट आपके इमोशंस को तोड़ेगा, हर बार तोड़ेगा। ठीक है, मार्केट में आप कंसिस्टेंटली हर दिन 5K का प्रॉफिट कर रहे हो, हर दिन 5K 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 5K, हर दिन 5K। आपने मान लेते हैं 3 इयर्स तक इस चीज को कंटिन्यू किया और हर दिन एक पैटर्न पे आप ट्रेंड ट्रेड किया, अच्छा खासा कैपिटल बना लिया आपने। मान लेते हैं आपने 3 इयर्स की अथक प्रयास के बाद मान लेते हैं 3 CR का कैपिटल बना लिया। एक दिन आपके अंदर आ गई अडानी की आत्मा। ठीक है, अडानी की आत्मा आ गई, आपने सोचा आज ही इसको 10 करोड़ बना देंगे। आपने आओ देखा ना ताओ, सीधा 3 करोड़ का पूरा माल उठा के, पूरा का पूरा क्वांटिटी उठा के बैठ गए। ठीक है, अब 3 करोड़ कहाँ आपने, मतलब डेली अपने 3% टारगेट के हिसाब से काम किया, एक बार में 20% का कैपिटल रिस्क पे डाला, और कहाँ आप अपना आज 100% कैपिटल लेके बैठ गए। आज कुछ तूफानी करते हैं, क्या होगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया? आप सोचो, एक सिंपल सा वो बताता हूँ, इसीलिए बोला जाता है स्टार्ट ट्रेडिंग विथ स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल पे अगर ट्रेडिंग करना आ गया, इमोशनल कंट्रोल करना आ गया, तो आगे जाके आप ऑटोमेटिकली चीजों को कंट्रोल कर जाओगे। ठीक है, स्टार्ट ट्रेडिंग विद ए स्मॉल कैपिटल। आज आप 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करते हो, उसमें एक बार में 25 के अगर डालते हो तो मैक्सिमम 100 क्वांटिटी लेते हो। आगे जाके जब 10 लाख के कैपिटल से ट्रेड करोगे तो एक बार में 2.5 लाख डालोगे, तो आगे जाके आप एक बार में क्या करोगे, 600 to 900 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। फिर आगे जाके जब इसको 1 CR ले जाओगे, आप एक बार में 25 लाख के कैपिटल से ट्रेड करोगे, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी, 6,000 to 9,000 हो जाएगी। अब आप सोचो, 100 क्वांटिटी में आपने 20 पॉइंट बुक किया तो 2,000 बने। ठीक है, 600 की क्वांटिटी में अगर आपने 20 पॉइंट बुक किया तो 12,000 बने। 6,000 की क्वांटिटी में आपने अगर 20 पॉइंट बुक किया तो कितने बने, 1,20,000 बने। पर लॉस भी उसी हिसाब से होगा ना। तो जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग कैपिटल बड़ा होता चला जाएगा, वेन एज पर द टाइम योर ट्रेडिंग कैपिटल विल स्टार्ट गेटिंग बिग, लॉस मैनेजमेंट विल बी वेरी मच बी देयर। अब मान लीजिए आपने 3 करोड़ के कैपिटल से स्टार्ट किया, आपने इसको आपने 75 लाख से ट्रेडिंग करी। ठीक है, अगर आपका जजमेंट सही नहीं है वहां पे, 3 करोड़ का मैक्सिमम 3%, मतलब डेली का कितना दे सकते हैं, 9 लाख मार्केट को दे सकते हैं, है ना। तो अगर 3% का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है, आपकी जजमेंट सही नहीं है, आप जोश में आके 18,000 क्वांटिटी में बैठ गए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बस आप बोल रहे हो कि मेरे को 20 पॉइंट चाहिए, 20 पॉइंट मिलेगा, लेकिन मार्केट जरूरी नहीं है कि कभी कभी तो आपको 5 पॉइंट के लाले पर आ देगा, 20 पॉइंट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब आपने 20 पॉइंट के चक्कर में मार्केट को 50 पॉइंट दे दिए, एक बार में आपका 9 लाख का लॉस हो गया, खत्म खत्म कहानी।
ठीक है, तो दैट इज वाई यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू कंट्रोल योर साइकोलॉजी, है ना। हम क्या करते हैं, हमारी आदत है, मेरी भी आदत रही है पहले, कि जैसे मैं अगर 25 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट मतलब 6.5 lakhs to 7 lakhs अप्रोक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 6 lakhs होता है वैसे, लेकिन वो कंट्रोल फिर भी नहीं आ पाता, 1 लाख एक्स्ट्रा निकल ही जाते हैं हर बार। मान लीजिए मैंने 7 लाख से ट्रेड किया, जैसे मेरा जो है 25 लाख से डेली का टारगेट मान लेते हैं, 4% के हिसाब से 100 के है, 1 लाख रुपए है मान लेते हैं। ठीक है, मेरे को ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया है, 80 के दे दिया। ठीक है, और जब हम एक ट्रेड लेते हैं ना, अगर हम ये CAGR को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा प्राइम टारगेट होना चाहिए कि कोई एक ट्रेड एटलीस्ट मेरे डेली, अगर मेरा डेली टारगेट 3% है ना, मान लेते हैं 3000 रुपीज, कोई एक ट्रेड मुझे 1500 रुपए दे के चला जाए। कोई एक ट्रेड, एक बड़ा ट्रेड होना जरूरी है। देन हम उसको फिर छोटे छोटे ट्रेड से कंपनसेट करके अपना डेली टारगेट पूरा कर लेते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, अगर मेरा टारगेट डेली 1 लाख का है, तो मैं अपने सेटअप पे वेट करता हूँ कि मुझे कोई एक ट्रेड 15 मिनट की डेली 32 कैंडल बनती है। ठीक है, एक कैंडल से मुझे एनी हाउ मेरी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से एटलीस्ट 40K to 50K का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, मतलब मैं 25-30 पॉइंट बड़े पॉइंट्स बुक करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर कैंडल्स को देखते रहना है। ठीक है, आप ATM या ITM में काम करोगे, फिर आप अगर मार्केट के सेंसेज एंड डायरेक्शन को समझने लगोगे। अब जैसे मैंने इसको 900 क्वांटिटी से लेके से इसको बुक किया है, उसके बाद मैं सीधी अपनी क्वांटिटी 450 कर दूं। ठीक है, अब 450 से कंसिस्टेंटली मुझे 5000 मिल रहा है, मुझे 3000 मिल रहा है, मुझे 2000 मिल रहा है, उस मतलब नहीं है। आई माई टारगेट इज टू कम नियर टू 1 lakhs एज क्लोज एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे ही मेरा ये टारगेट डन, टर्मिनल क्लोज्ड। इवन मुझे दिख रहा है कि मैं ऑलरेडी मेरे टर्मिनल पे 95,000 का प्रॉफिट था, और मैंने कोई ट्रेड लिया 450 क्वांटिटी से, अब ये 95,000 अगर 86,000 बन गया है। असली लड़ाई यहीं पे होती है, दिमाग मानने को तैयारी नहीं होता कि 95,000 से नीचे हम घर लेके जाएंगे। ठीक है, असली लड़ाई यहीं पे है। दिस इज द रियल फाइट विच यू हैव टू फाइट ऑलवेज। आपका दिमाग ये मानने को तैयार होता ही नहीं है कि हम 95,000 से नीचे घर लेके जाएंगे। मतलब बिगेस्ट दिक्कत क्या है, रेड कलर। हम चाहते ही नहीं है कि कोई रेड कलर में है। इवन हम ये भी नहीं चाहते कभी कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट, CTC कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकले। हम चाहते हैं कि वो हमको हमेशा ग्रीन में ही दिखे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, इट विल नॉट ऑलवेज हैपन लाइक दैट। आपको रेड कलर की आदत लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपका डिसीजन है, आपने डिसाइड किया है। ठीक है, आपने, अगर आपका टोटल कैपिट प्रॉफिट इज 3000 पर डे, अगर आप उस पर फिर फर्दर रिस्क लेना चाहते हो, तो आप इस 3000 का आप 25% मैक्सिमम रिस्क लो, क्योंकि आपका टारगेट एनी हाउ है कि मुझे 75% तो घर लेके जाना ही जाना है। ठीक है, तो लाइक दिस यू विल हैव टू स्ट्रेटेजाइज। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है फिर मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग की। हमने जैसे, मैंने 90, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, पहले 95,000 का प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, मेरा टारगेट है 1 लाख। दिमाग कह रहा है, दिल कह रहा है कि इसको, दिमाग कह रहा है कि अब यहीं पर टर्मिनल क्लोज करके निकल जाते हैं। फिर दिख रहा है अचानक से, अरे कैंडल्स तो बनी रही हैं आराम से, इसमें कहीं ना कहीं से 5,000 तो बन ही जाएंगे। ठीक है, और इसको हम 1 लाख बना देते हैं। चलो 1 लाख भी भगवान ने बनवा दिया ट्रेडिंग में, फिर 1 लाख पे भी आ गया। अब डेली टारगेट पूरा हो गया। अब दिमाग कहना शुरू क्या करता है, यार इसमें चार्जेस भी तो कटेंगे, एक काम करते हैं इसको 1,08,000 बना देते हैं। 1,08,000 बनता है, तो सोचते हैं चल 200 300 500 जितना इसमें ऐड होता है, चलो बस एक बार हम, क्या होता है सडनली, ये 1,08,000 जो था, तुरंत मेरे को 93,000 दिखना शुरू होता है। नाउ आई स्टार्ट गेटिंग द पैनिक। क्यों? क्योंकि दिमाग ने तो 1,08,000 का फिगर हाईएस्ट देख लिया उस दिन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर 450 की क्वांटिटी से ट्रेड करता था, सॉरी 450 की क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, इसमें 100 और ऐड कर दिया। अब ये 93,000, अब मुझे को 86,000 दिख रहा है। ठीक है, मैं इसमें फिर 100 क्वांटिटी और ऐड कर गया। ठीक है, अचानक से ये 86,000 अब मुझे 43,000 दिख रहा है। मतलब जो मैं गलतियां करता था एक टाइम पे, अब मैंने इसमें और एग्रेसिवली 250-300 क्वांटिटी ऐड कर दिया। मतलब अगर मैं पूरे दिन में 900 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, अब मैं देख रहा हूँ वो बढ़ के पूरा कैपिटल लग गया, 2200 की क्वांटिटी हो गई, 2300 की, 2500 की क्वांटिटी हो गया, अब उससे ट्रेड हो रहा है। तो कैपिटल पूरा एक बार में जो प्रॉफिट कमाया था तो स्वाहा हो गया ना। ठीक है, ये पहले का मेरा वो होता था। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं
95,000 बन गए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इसमें से एनी हाउ मुझे 75,000 तो घर लेके जाना ही है। 75,000 जैसे ही टर्मिनल पे दिख जाएगा अगर, भाई ट्रेडिंग बंद। ये मेरी कोशिश होती है, हो सकता है मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो लॉस दे दे मुझे, इट इज देयर। तो मैं सोचता हूँ 20,000 अब मैं इसमें से रिस्क पे ले लूंगा। तो 20,000 के हिसाब से जो भी मेरी क्वांटिटी बनती है, मैं उसमें अब ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब अगर पर ट्रेड मुझे 1500, 2,000, 3,000 रुपए का प्रॉफिट होता चला जा रहा है तो ये एडअप हो रहा है। ठीक है, और अगर मेरे ट्रेड्स गलत जा रहे हैं, मैं, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, मेरे लेवल पे जब आप पहुंच जाओगे तो आपके मोस्टली 100 में से 90 ट्रेड फिर सही ही जाएंगे, फिर गलत कम जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके ट्रेड्स आपके फिर भी मेरे साथ भी होता है, मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ हो सकता है उसका उल्टा स्टार्ट हो गया, तो मैंने फिक्स किया हुआ है मेरा जो हाईएस्ट उस दिन प्रॉफिट बन गया है उसका 75% to 80% मेरे को घर लेके जाना है। जैसे मेरे को डेली 1 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, मेरे दिमाग ने 1,15,000 ऑलरेडी देख लिया है, तो मैं इसका लीस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, 80% लेके जाना है, मतलब 85,000 मुझे हर हाल में चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही इसके, अगर इसके प्लस जा रहा है 500, 1,000 पॉइंट, मैं बुक करता चला जाता हूँ, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए जितना दे रहा है स्कैल्पिंग में उसको बुक करता गया। जैसे ही अगर अगेंस्ट द जाके ये 85,000 दिखना शुरू होता है, मैं अपना टर्मिनल बंद कर देता हूँ। फिर उस पे वहां पे, तो मैंने क्या किया, मैंने रेड कलर को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने रेड कलर को एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा मेन टर्मिनल है। नीचे मेरे ट्रेड्स चल रहे हैं इस तरीके से, 3, 4, 5। ठीक है, मान लीजिए मैंने 51,200 सी बाई किया था, उसमें मेरे को एक टाइम में 46,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर मैंने 51,000, मैं हमेशा कैपिटल बड़ा है तो मैं इन द मनी काम कर रहा हूँ, 5100 इसमें मैंने 23,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, इसमें मैंने मान लीजिए एक तरीके 50,800 सी में मैंने मान लीजिए 11,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक और ट्रेड लिया 50,900 सी, और उसमें मैंने फिर 3,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो टोटल मिला के 639, 110 और 313, 42, 617 और 18, 83,000 का प्रॉफिट मुझे हो गया। मार्केट के हिसाब से मैंने देखा, मैंने 4 ट्रेड लिए, मेरे को प्रॉफिट अब हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कोशिश करूंगा कि मैं 60,000 रुपीज आज मुझे घर लेके जाना ही है। 83 के ऊपर जितना बनता चला जाएगा वो मेरे लिए अच्छा है। अगर मुझे 60,000 मेरे टर्मिनल पे दिख जाएगा, मार्केट वहां से मेरे को समझ आए ना आए जो भी हो, मैं वहां से अपना टर्मिनल बंद। टारगेट इज एनी हाउ 75% to 80% घर जाना है, दैट्स इट। पहले क्या करता था, यहाँ पे जैसे मैंने अब कोई ट्रेड ले लिया, मान लेते हैं 50,900 सी फिर से ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये यहाँ पे मान लेते हैं 13,000 रुपए का लॉस देके चला गया, तो दिस इज रेड, एंड बाकी सारे ये ग्रीन है, दिस इज ग्रीन, ये सारे ग्रीन है। तो पहले मेरे को सारा ग्रीन चाहिए था, एवरी, ये पांचों का पांचों ट्रेड है ऑल जी, लेकिन अब मैं इस रेड के साथ भी खुश रहता हूं। तो जब से मैंने इस रेड के साथ खुश रहने की आदत लगाई है, तब से मेरे लॉस जो हैं वो मेरे कंट्रोल में आ गए हैं। ठीक है, तो आपको आपके दिमाग को रेड के साथ खुश रहने की आदत लगानी पड़ेगी। अगर आप अपने दिमाग को रेड के साथ खुश रहने की आदत लगा देंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट हर्ट, फिर आपको फिर तकलीफ नहीं होगी, यू आर नेवर गोइंग टू गेट हर्ट। आप फिर अच्छी खासी खुशी के साथ फिर अपने आप को आगे कंसोल करते हुए अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपनी गलतियां की हैं या जो मैं अब करता हूँ या जैसे चल रहा हूँ, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसके हिसाब से अपने चीजों को समझिए और समझाने की कोशिश करते रहिएगा। देखिए, गाइड पढ़ाने वाला बताने वाला सब होगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से उंगली पकड़ के चलाने वाले ना शायद आपको आपकी जिंदगी में इक्के दुक्के लोग ही मिलेंगे। तो अगर मिल रहा है कोई, तो यू ऑलवेज शुड रिवाइव योर अपॉर्चुनिटी, जो भी हुआ हुआ, यहाँ से आगे मुझे अपने आप को बदलना है। ठीक है, यू हैव टू थिंक लाइक दैट, आपको उसी तरीके से अपने आप को सोचना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवॉइड मार्केट ट्रैप्स। आपको मार्केट के ट्रैप्स को अवॉइड करना है। हाँ,
ठीक है, मार्केट के ट्रैप्स को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अब मार्केट के ट्रैप्स को अवॉइड करने के लिए, ये जो मार्केट का ट्रैप है, ये अवॉइड करने के लिए ये किस में लाई कर रहा है? द की टू सच वाइड स्प्रेड फेनोमेना लाइज इन द नेचर ऑफ द क्राउड। ठीक है, हाउ टू अवॉइड द मार्केट ट्रैप, मार्केट के ट्रैप को कैसे अवॉइड करें, सोचना हमें यही है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना क्या है कि ये जो है नेचर, क्राउड के नेचर में, आपको पता है मार्केट जो है वो क्राउड का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग इमोशन, अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल, अलग अलग साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके बीच में ही आप भी बैठे हो और आपको मार्केट के ट्रेड को अवॉइड, मार्केट के ट्रैप को अवॉइड भी करना है, मार्केट के ट्रैप को आपको अवॉइड भी करना है। क्राउड का काम क्या है? क्राउड का जो काम है, नेचर ऑफ द क्राउड, वो क्या है? ठीक है, बहुत लोग आपको काम मिलेंगे, बहुत लोग आपको रैशनल मिलेंगे, रैशनल इंडिविजुअल्स भी होंगे। ठीक है, और बहुत आपको ओवरवेलमिंग भी मिलेंगे, बहुत लोग ओवर एक्सप्रेसिव भी मिलेंगे, जो अपने एक्सप्रेशन को बहुत अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्राउड का नेचर है, दिस इज द नेचर ऑफ द क्राउड। ठीक है, तो जब मार्केट में ऐसे लोग की जगह ज्यादा बढ़ जाए, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है फियर के फॉर्म में, तो मार्केट आपको इंस्टेंटली बियर रिएक्शन देगा। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है आपको एज बीइंग इन द होप, पॉजिटिविटी आ रही है, तो वहां आपको अचानक से बुल मार्केट टर्न होना दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है, दिस इज अ यूनिवर्सल पैटर्न। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा पीछे बताया भी, डोंट फॉलो द क्राउड, आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है, डोंट फॉलो द क्राउड। ठीक है, तो जो लोग मार्केट में बहुत सालों से मार्केट की चीजों को स्टडी कर रहे हैं, मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, मार्केट में इंडिविजुअल्स की साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, उन सब में एक ही बात कॉमन थी, उन सब में एक ही बात कॉमन थी, डेट वाज फोमो। ठीक है, फैमिली मैन वेब सीरीज में बोलता है ना, फोमो लोलो, बाकी मैं नहीं बोलूंगा, इट इज बिट अब्यूसिव। ठीक है, तो फोमो, सब में एक ही चीज कॉमन है, और कहीं ना कहीं मैं आज भी बोलूं तो आई एम 80% फ्री ऑफ दिस, 20% ये अभी भी मुझे अफेक्ट करता है, इवन आफ्टर स्पेंडिंग 7 to 8 years ऑफ माई लाइफ इन ट्रेडिंग। फोमो, फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही है, फोमो, फोमो रोफ्लो डैश डैश डैश। तो आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पूरी साइकोलॉजी, पूरी एनालिसिस, पूरी स्टडी जो पूरे वर्ल्ड मार्केट के ऊपर की गई है, तो सब में एक बात कॉमन निकल के आई, एंड दैट वाज फोमो, फोमो रोफ्लो डैश 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 लोलो, है ना? ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लोगों के मन में क्या है, जो एक इंडिविजुअल है ना, उसके मन में क्या फोमो है पता है? आप सोच के हंसोगे, उसके आपके मन में भी होगा, मैं बता रहा हूं, आप बोलना अगर मैं गलत बोल रहा हूं। एक इंडिविजुअल जो एक ट्रेडर है, व्हाट इज हिज फोमो, उसका फोमो क्या है? व्हाट इज हिज फोमो? उसका फोमो है कि जो प्रॉफिट है वो उसको ज्यादा मोटिवेट करता है, उसको लगता है कि आज मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा। ठीक है, आज मैं प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, और जो उसकी लाइफ की सेविंग है, जो उसकी लाइफ की सेविंग है, जो उसने एज अ ट्रेडर मार्केट में अपने डिमैट अकाउंट में डाला है, उसको खोने का डर उसका कम है, उसको उसका डर ही नहीं है। उसको जो प्रॉफिट मार्केट दे सकता है, उसका फोमो है। समझ में आई बात? बीइंग अ ट्रेडर यू आर एन इंडिविजुअल, और आपको फोमो है, रिटेल ट्रेडर बीइंग अ ट्रेडर, आपको एक फोमो है। फोमो क्या है? फोमो आपको ये डर नहीं है कि आपने जो हार्ड अर्न आपकी सेविंग्स है, जो आपने 6 साल 7 साल में इतने मेहनत करके बचाई है, जुटाई है, वो आपसे छिन जाएगी, आपके हाथों से निकल जाएगी। लोगों को फोमो ये है कि मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा मार्केट में।
ठीक है, मार्केट में मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा, मार्केट इज गोइंग टू टेक आउट माई प्रॉफिट। दिस इज द बिगेस्ट आयरनी ऑफ बीइंग अ ट्रेडर। मेरी जो हार्ड अर्न मनी है, मेरा जो पैसा है, जो मैंने इतनी शिद्दत से इतने तगड़े तरीके से कमाने की कोशिश की है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट जो है वो चला जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं, आज का प्रॉफिट नहीं पा कर पाया मार्केट में, मेरे आज मैं बिजी था, अचानक से इतने अच्छे चार्ट बने, इतना अच्छा प्राइस एक्शन बना, इतना सारा सब कुछ हुआ, और मैं ये अपॉर्चुनिटी लूज कर गया, शिट। इसकी इसके अब मैं कैसे सोचता हूँ, चलो यार मेरा कैपिटल तो सेफ है ना, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं ऐसे सोचता हूँ। आप कैसे सोचते हैं? यार मिस हो गया, आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई। मैंने अपने दिमाग को एक बात बिठा ली है, अपने दिमाग में एक बात बिठा ली है, अपने आप को, अपनी आत्मा को ये समझा दिया है, डियर रवि रंजन, आपने जिस दिन जन्म लिया मार्केट उस दिन भी चल रही थी। आप जब तक इस धरती पे सांस ले रहे हैं मार्केट तब भी चलेगी। आप जिस दिन इस धरती को टाटा बाय बाय बोल देंगे मार्केट उसके बाद भी चलती रहेगी। ठीक है, तो आप इस मार्केट के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा टाइम, अपने पूरे रिसोर्सेज, अपने पूरे इमोशंस, अपने पूरे फीलिंग को बर्बाद करना खत्म कीजिए। ट्रेडिंग के अलावा भी इस दुनिया में और जहां हैं, जहां पे आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, तो ट्रेडिंग में उतना ही कमाइए जितने से आप खुश रह सकें। ठीक है, इस महात्मा गांधी ने बड़ी खूबसूरत बात बोली है, इस धरती के पास हर किसी को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत प्रचुर मात्रा में चीजें हैं। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं कि हाँ मैं इतने से खुश हूं, तो इस धरती के पास बहुत सारा एबंडेंस में चीजें हैं जिससे वो आपको खुश रख सकती है। लेकिन इस धरती के पास इंसान की ग्रीड को सेटिस्फाई करने का कोई भी तरीका नहीं है, उतना एबंडेंस है ही नहीं। समझ में आई बात? अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, इस धरती के पास, मदर नेचर के पास आपकी हर जरूरत को पूरा करने का, हर जरूरत को सेटिस्फाई करने का संसाधन मौजूद है, बट आपकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने का संसाधन इस धरती के पास भी मौजूद नहीं है। महात्मा गांधी ने बड़ी खूबसूरत लाइन कही है। ठीक है, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, सो जब आपके अंदर फोमो ये होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट की जगह आपको ये सेटिस्फाई होना चाहिए, अरे यार चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरा कैपिटल तो सेव है, इससे तो मैं जब चाहूं अपनी ट्रेडिंग से आज 1 लाख का मिस हुआ है तो ये तो मैं फिर से पार्ट बाय पार्ट करके कमा ही सकता हूँ। तो मार्केट जहां भी जा रहा है, क्या भी कर रहा है, मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि मैंने 1 लाख रुपए अपना ट्रेडिंग कंप्लीट कर लिया, मैंने टर्मिनल बंद कर दिया, मैं कहीं निकल गया, मैं देख रहा हूँ भाई, और वो मुझे पता था कि ये ब्रेकआउट शायद आने वाला है, और मैंने सोचा था ये नेक्स्ट डे आएगा, 2-3 दिन के बाद, क्योंकि मार्केट में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। आप अभी बैठे हुए थे, आपने अपना प्रॉफिट किया, टर्मिनल बंद कर दिया, सडनली आप ही की डायरेक्शन में मार्केट ने अचानक से 600 पॉइंट की मूव दे दी। अब आप बैठ के माथा थोड़ी पीटोगे अपना कि मैंने मिस कर दिया, फिर आएगा, इट विल कम अगेन। हम तब बना लेंगे पैसे, हम तब सोच लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ऑलवेज बी अवे फ्रॉम दिस फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और या फिर फियर ऑफ मिसिंग दी अपॉर्चुनिटी, इससे हमेशा आपको दूर रहना है। ठीक है, ये जो छूट जाने की प्रवृत्ति है ना, ठीक है, ये एक क्राउड को ओवरवेलमिंग तरीके से आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये जो छूट जाने की प्रवृत्ति है, दिस हेल्प्स द क्राउड टू गो इन दी ओवरवेलमिंग मैनर, ये उसको फिर एक ओवरवेलमिंग मैनर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा फिर इंस्पिरेट करता है। ठीक है, तो आपको इस क्राउड की जो बीमारी है, इस क्राउड की जो बीमारी है वो क्या है? फोमो, इससे दूर रहना। ठीक है, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम द डिजीज ऑफ दिस क्राउड विच इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, एक लाइन हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। दिमाग में बिठा लो। ठीक है, आपकी हर जरूरत को पूरा करने का संसाधन इस धरती पे मौजूद है, बट आपकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने का कोई संसाधन इस धरती पे मौजूद नहीं है।
ठीक है, आपको ऐसी बहुत सारी मतलब टाइमिंग मिलेगी, बहुत सारी आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारी आपको ऐसी टाइमिंग आपकी ट्रेडिंग करियर में आएगी। ठीक है, आपको लगेगा ये श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी थी, श्योर शॉट, ये होना ही था जिससे मेरे को प्रॉफिट बनता। ठीक है, बट आप उसको मिस कर दोगे। अगर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसको मिस जो किया है, अगर मैं सबको कैलकुलेट करने बैठ जाऊं, तो जो मेरा, अगर मान लेते हैं आज मेरा नेटवर्थ 50 करोड़ है, तो अगर मैं ये सारी अपॉर्चुनिटीज कैच करता तो मैं 500 करोड़ पे बैठा होता। अब मैं उसके चक्कर में अपनी जिंदगी थोड़ी खराब कर दूंगा। ठीक है, जो किस्मत में था, जो डेस्टिनी में था, जो मेरे हिसाब से था वो मुझे मिला, जो नहीं था वो नहीं मिला। इसके लिए इतना क्या सोचना है। ठीक है, तो जो हमें पछतावा किस चीज का होता है, हमें, आज आप अपने ट्रेडिंग करियर में जो आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप अपने आप को एनालाइज करो, आपको पछतावा होता होगा फियर ऑफ, सॉरी, लूजिंग प्रॉफिट्स का, कि यार उस दिन इतना पैसा बन सकता था, ये छूट गया। आपको ये कभी पछतावा नहीं होता होगा कि उस दिन कितना लॉस हो गया था, लूजिंग लॉसेज का। ठीक है, आपको अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट होता होगा। यू वुड बी रिग्रेटिंग फॉर योर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन दिस मार्केट, बट आपने कितने सारे लॉसेज कर लिए, आपको उस चीज का रियलाइज नहीं होता होगा, शायद आप उसको कभी याद भी नहीं करना चाहते होंगे। कड़वी चीजों को लोग याद नहीं करना चाहते, अच्छी चीजें लोग हमेशा याद करना चाहते हैं। दिस इज द आयरनी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, है ना। सही बात बोल रहा हूँ। तो लॉस जो है वो कड़वी चीज है, उसको कभी यू डोंट वांट टू, इट इज अ बिटर बिटर ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, यू डोंट वांट टू रिमेम्बर इट। आप जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है उसको सोच सोच के खुश हो जाते हो, और भाई साहब 30 रुपए का कॉल 300 गया, 11-12 रुपए का कॉल जो है 600 रुपए गया। अगर मैं 12 रुपए पे खरीदता और इतना क्वांटिटी होता और उसको 500 पे भी बुक करता तो कितना प्रॉफिट बनता। सबने ये कभी ना कभी सोचा होगा, हमेशा जब आपने इस चीज को मिस किया होगा। लेकिन आपने जो लॉसेज किए हैं वो आप कभी रियलाइज नहीं करते। अब जब आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, आप इसका ठीक उल्टा सोचोगे। आपके जिस दिन लॉसेज होंगे ना, आपने आपने जिस दिन लॉसेज किए हैं, आप उसको बहुत तगड़े तरीके से एनालाइज करोगे, बहुत तगड़े तरीके से। और जिस दिन आपको प्रॉफिट हुआ है उस दिन आप खुश रहोगे, उसको बस एनालाइज करके छोड़ दोगे। बट जिस दिन लॉसेज होंगे, जब आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, आप उसको एनालाइज करोगे और कोशिश करोगे कि इस मिस्टेक को मैं फिर से वापस रिपीट ना करूं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ठीक है, और अभी क्या है, उल्टा है। आपने जो अपॉर्चुनिटी मिस की है उसका आपको बड़ा अफसोस होता है, जो अपॉर्चुनिटी आपने यूज करके जो लॉसेस किए हैं आपको उसका अफसोस नहीं होता है। ठीक है, और यह है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पैराडोजी है। 100 में से 90 लोग इसी चीज के शिकार हैं, और जो 10 लोग इससे बच जाते हैं वो एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा मतलब ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ बीइंग अ इंडिविजुअल और अ ह्यूमन बीइंग। वी ऑलवेज वांट टू फिट इन द क्राउड। हम हमेशा भीड़ के बीच में रहना चाहते हैं, वी ऑलवेज वांट टू फिट इन द क्राउड। ठीक है, ऑलवेज, हम हमेशा भीड़ के बीच में रहना चाहते हैं, वी ऑलवेज समहाउ वांट टू फिट इन द क्राउड। ठीक है, और यही चीज इस ट्रेडिंग की दुनिया में कितने लोगों की दिवालिया होने की, बर्बादी का जो है ये कारण रह चुका है। दिस इज द रीजन विच हैज बिन द मेन सोल रीजन ऑफ डिस्ट्रॉय बीइंग डिस्ट्रॉयड इन ट्रेडिंग फॉर मेनी ऑफ द ट्रेडर्स। ठीक है, एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, नेवर फाइट द पावर ऑफ द क्राउड। ध्यान से सुनना, नेवर फाइट द पावर ऑफ द क्राउड, बट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हाउ योर इंडिविजुअल डिसीजंस रिलेट टू द पावर ऑफ दोज अराउंड यू। समझ में आई बात। कभी भी जो क्राउड का पावर है, मतलब जो पूरा मार्केट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है बुल बुल बुल, दिस इज द पावर ऑफ क्राउड। You being an individual,
यू बीइंग एन इंडिविजुअल, आपका जो इंडिविजुअल पावर है उससे आप उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। रिलेट मतलब क्या? यू ट्राई टू एनालाइज इट। जिस दिन आप ये एनालाइज करना शुरू कर देंगे ना कि क्राउड क्या कह रहा है और मैं क्या सोच रहा हूं, तो मेरे और क्राउड के बीच में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या मैं सही हूं या क्राउड सही है, क्या मैं सही हूं या क्राउड सही है। ठीक है, जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे, दैट डे यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड ट्रेडर, फिर आप उस दिन एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, और ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, नेवर फाइट द पावर ऑफ द क्राउड, मार्केट इज सुप्रीम, आप मार्केट को चैलेंज नहीं कर सकते। मार्केट अगर कह रहा है बुल मीन्स बुल, यू वेट फॉर योर लेवल्स। आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो लेवल है, वो कह रहा है कि मार्केट इज नॉट बुल, मार्केट इज बियर। लेकिन आप वहां पे, मार्केट बुल बुल जा रहा है लेकिन आप उसको फाइट करके अपना पोजीशन वोजिशन सब बना के बैठ गए कि ना ना मार्केट तो बियर ही है यहाँ से, तो ये तो आपकी बेवकूफी है। दिस इज योर बेवकूफी। यू विल हैव टू वेट फॉर योर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू शुड नेवर फाइट द पावर ऑफ द क्राउड, बट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हाउ योर इंडिविजुअल डिसीजंस रिलेट टू द पावर ऑफ दोज अराउंड यू। आपने जो इंडिविजुअल डिसीजंस ट्रेडिंग में लिए हैं, वो अभी के हिसाब से जो क्राउड का जो थॉट है उससे कैसे मैच कर सकता है। अगर आप इस कोड को फिर फर्दर ब्रेक करते हैं, देन यू विल बिकम अ प्रो इन डिसाइडिंग द ट्रेंड। तो फिर आप उस तरीके से ट्रेंड डिसाइडर बन जाएंगे कि ट्रेंड को कैसे डिसाइड किया जाता है, हाउ यू कैन डिसाइड दी ट्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्दर फिर ट्रेंड को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 7 सेशंस जो मैंने आपको दिए, टुडे इज द 7th सेशन। इन 7 सेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे साइकोलॉजी की बात की। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले आपका गोल एंड एम दिया, विच इज योर CAGR। आपने उसकी 10 years की शीट बनाई, उस ईच शीट को आपने 1 year के शीट में डिवाइड किया, उस 1 year के शीट को फिर फर्दर आपने 1 month इंटू, इसको आपने 1 year इंटू 10 शीट्स बनाई, फिर 1 year को आपने फिर 1 into 12 months में डिवाइड किया, फिर 1 month को आपने फिर 1 into 30 days में डिवाइड किया, और फिर आप अपने ब्रेकअप टारगेट पे आ गए, आप अपने ब्लूप्रिंट पे आ गए कि आपने जो 1 लाख रुपए से जो अपनी जर्नी शुरू की, वो 10 years के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से, इवन आपने अगर जो मैक्सिमम कैलकुलेशन की है उसका 50% भी बिठा देंगे, तो भी समवेयर आई एम सिटिंग अराउंड व्हाट 25 to 75 CR एज पर योर कैलकुलेशंस। है ना, मतलब 100 CR तो कहीं नहीं गए, ये पॉसिबल है और ये हो सकता है। ठीक है, ये आपने गोल लिया, ये आपने अपना एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट बनाया। फिर मैंने आपको अलग अलग चीजों से, अलग अलग तरीके से उस ब्लूप्रिंट को अचीव करने के लिए इंस्पायर करने की कोशिश की, साइकोलॉजिकली कैसे हम यहाँ से चीजों को अपने लिए ठीक कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ से बढ़ सकते हैं, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये CAGR बार बार आएगा, entire 3 months this CAGR will be keep coming and haunting you। तो इस CAGR को अपनी जिंदगी का एक जरिया बना लीजिए। दिस इज गोइंग टू मेक यू अ वेरी गुड ट्रेडर इन योर लाइफ, मतलब आप अपनी जिंदगी के सारे दुख खत्म कर लेंगे। यू विल बी एबल टू फिनिश ऑल योर सोरोनेस, ऑल योर दुख, दर्द, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। ठीक है, तो अभी तक भी अगर आपने अपना CAGR कैलकुलेट नहीं किया है, तो प्लीज इसको करके उस सपने को पूरा करने के पीछे लग जाइए। जस्ट ट्राई टू डू इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है, अब 8th ट्रेडिंग सेशन ऑनवर्ड्स, नाउ आवर रियल लर्निंग विल स्टार्ट। ठीक है, अब कल से हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे लिए वो होगा स्टॉक मार्केट बेसिक्स। मैं देने को 50 सेशन भी दे दूं आपको, CAGR, गोल्ड, एवरीथिंग, हर चीज पे, क्योंकि मेरे पास इतना है बोलने के लिए, क्योंकि मैंने ये सब झेला हुआ है। ठीक है, बट आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि जब भी हम आगे पढ़ते जाएंगे हम हर चीज को फिर फर्दर समझेंगे। है ना, जो भी हमने पीछे पढ़ा है, और जो भी हमने पीछे जो चीजें अपने लिए डिसाइड की है, उसको हमेशा मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, दैट दिस इज द थिंग, दैट दिस इज योर गोल। आप ट्रेडिंग में आपने अपने आपने क्या क्या ट्रेडिंग में अभी तक अपने आप से सीखा, अगर मैं इन 7 दिनों की बात करूं, तो आपने अपनी ट्रेडिंग में
क्या क्या सीखने की कोशिश की, आपने अपना पर्पस समझा कि आप ट्रेडिंग में क्यों आए। बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर, अगर आप अब जब नोट्स बनाएंगे अपने लिए, अपनी ये नोट्स आप किसी को एग्जाम देने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये आप अपने लिए बना रहे हैं। ये 7 दिन मैंने आपको जो दिए हैं, ये आपकी जिंदगी में आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए दिए हैं। आपने सबसे पहले अपना पर्पस डिसाइड किया कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में क्यों आए। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की क्या कहानी होती है, ये आपने डिसाइड किया। आपने आप अपने आप से कुछ सवाल पूछे, अपने आप से आपने कुछ सवाल पूछे, आस्क यू क्वेश्चंस, आपने अपने आप से सवाल पूछा। आपने अपने लिए एक टर्मिनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। टर्मिनल ऑब्जेक्टिव क्या था? अचीव दी CAGR गोल। आपने अपने लिए एक टर्मिनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ठीक है। आपने फिर फर्दर अपना पर्पस डिसाइड किया, नो योर पर्पस। आपका पर्पस क्या था? फिर आपने मार्केट साइकोलॉजी को समझा। फिर आपने मार्केट कैसे आपके इमोशंस के साथ खेलता है, हाउ मार्केट प्ले विथ योर इमोशंस, आपने उसको समझा, ठीक है। फिर फर्दर मार्केट के ट्रैप्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड मार्केट ट्रैप्स, आपने उन चीजों को समझा। फिर फर्दर मतलब इन 8-9 टॉपिक्स की मदद से आपने अपने लिए एक बेस तैयार किया। बेस क्या है? फाउंडेशन। अल्टीमेट गोल क्या है? CAGR। जो ये कैलकुलेशन है, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, हर साल के हिसाब से ये कर दो ना भाई। 2-3 साल भी कर दोगे ना, तो एटलीस्ट 75% तो जिंदगी सुधर ही जाएगी। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे ये 3 साल, या 5 साल के बाद आपके पास 50 करोड़ होंगे तो मैं थोड़ी बोलूंगा 5 करोड़ मुझे भी दे दो, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने लिए दे दो 5 साल। यकीन मानो, आप बहुत आगे निकल चुके होगे अपनी लाइफ में। यू कांट इवन इमेजिन वेयर यू आर गोइंग टू बी इन योर लाइफ आफ्टर दैट, ठीक है। दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है। तो ये सारी तरीके से ये आपकी लर्निंग है। लर्निंग इन द सेंस, दिस इज योर एनालाइजेशन। ये एक एनालाइजेशन है जो आपको खुद से बैठ के करना चाहिए था, लेकिन मैंने इन 7 ट्रेडिंग सेशंस में आपको ये कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पे आप मेरे बताए हुए चीजों को मत लिखिएगा, इन टॉपिक्स पे आप अपनी चीजों को, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखिएगा, ठीक है। और उसको अपने CAGR की फाइल के साथ अटैच कीजिएगा और अपने पास रखिएगा, ठीक है। ये सारी एक जर्नी है, ये एक जिंदगी है जो आप जी रहे हैं, ठीक है। आप जब अभी वी आर मिडिल क्लास, वी आर सर्वाइविंग टू live this life, we are surviving to achieve our dreams, but when you will become a millionaire, when you will become a multimillionaire, your prime focus will be to make memories। पैसा तो आता जाता रहेगा, memories are will be there, ठीक है। जो आपके जाने की बाद भी वो मेमोरीज इस दुनिया में तैरती रहेंगी, ठीक है। आप ट्रिप्स पे जाते हो, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या खाया क्या किया, वो सब भूल जाते हो। आपको याद क्या रहता है? जो आपने वहां पे मेमोरीज बनाई है। तो लाइक दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन मेमोरीज इन ट्रेडिंग ऑल्सो। आपको ट्रेडिंग की दुनिया में अपने लिए मेमोरीज बनानी, आपको उन मेमोरीज के ऊपर फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दी मेमोरीज, ठीक है। तो प्लीज इस 7 इन ट्रेनिंग सेशंस की मदद से मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, यही मेरी कोशिश होगी, दैट यू एनालाइज योर पार्ट नाउ। आपको मैंने आपका गोल दे दिया, आपको आपका ऑब्जेक्टिव दे दिया, आपको आपका गलतियां जो हैं, जो आप इतने सालों से शायद वो चीजें एनालाइज नहीं कर पाए थे, उसको एनालाइज कर पाओ, उसको प्रॉपर सोच पाओ, समझ पाओ। और जो CAGR का एक पावर मैंने आपको दिया है, आप छोड़ो ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। 1 लाख रुपया है ना, आप तो मंथली मतलब कोई कोई 20% पे कैलकुलेट कर रहा है, कोई 30% पे कैलकुलेट कर रहा है, कोई 40% पे कैलकुलेट कर रहा है, कोई 50% पे कैलकुलेट कर रहा है, कोई 60% पे कैलकुलेट कर रहा है, मतलब कोई 1%, 2% पे कैलकुलेट कर रहा है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, इस तरीके से 1 लाख पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप 1 लाख का एक साल में कितना परसेंट बना रहे हो? अगर आप नॉर्मल 2% कैलकुलेशन करके भी चल रहे हो तो 24% होता है एक महीने का, ठीक है। तो पूरे साल का कितना होगा? ये हो गया 240 और 248, अप्रोक्सीमेटली 288, मतलब हम मान के चलते हैं 250%, ठीक है। आप पूरे साल का कोशिश कर रहे हो अचीव करने की, आप 250% छोड़ दो।
आप पूरे साल का अगर सिर्फ 75% टू 100% भी मेंटेन कर लेते हो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, आपके ये 1 लाख रुपए फिर भी 10 करोड़ बन जाएंगे आराम से। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये मिनिमम। बाकी तो जो आपने गोल डिसाइड किया है उसको कभी तोड़ो मत, कभी छोड़ो मत, और कंटिन्यू उस पर लगे रहो। दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, दिस इज रियली गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ठीक है, दैट दिस CAGR वाज ए गेम चेंजर फॉर मी, कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की क्या पावर है, मैंने इससे समझा था। ठीक है, तो जो मैंने अपने आप से समझा वो मैंने आपको भी समझाने की कोशिश की है। तो मेरी आपसे दिली उम्मीद है, दिली इच्छा है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपने इसके मैजिक, अल्टीमेटली इस लाइफ में आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस? एक अच्छी जिंदगी जीना, अपने आप को वो सारी सुख सुविधाएं देना, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने किड्स, अपने बच्चों, अपनी गर्लफ्रेंड, या जो भी फ्यूचर है आपका, कि आपको कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। आपका अल्टीमेटली पर्पस तो वही है ना। तो दे दो ना यार कुछ साल। जहाँ इतने साल तो अपनी जिंदगी के जिए ही हैं आपने, सब तो यहाँ 20 साल प्लस ही हैं, 20 ईयर्स प्लस हैं। किसी ने अपनी जिंदगी के 20 साल दे दिए, किसी ने 25 दे दिया, 30 दे दिया, किसी ने 35 दे दिया। 2 3 साल 4 साल और दे दो, आप देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो आप। ठीक है, तो फ्रॉम नेक्स्ट डे 8 ऑनवर्ड्स आवर रियल ट्रेडिंग लर्निंग स्टार्ट्स। ये रियल से भी ज्यादा था, ये डायमंड था। ठीक है, अब हम प्लैटिनम लर्निंग स्टार्ट करेंगे, फिर वो गोल्ड बनेगा, फिर सिल्वर बनेगा। उल्टा होता है ट्रेडिंग में। तो जो आपने ये 7 डेज में सीखा, दिस वाज डायमंड लर्निंग। अब आप प्लैटिनम लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हो, फिर आप गोल्ड लर्निंग की तरफ बढ़ोगे, फिर सिल्वर लर्निंग की तरफ बढ़ोगे, फिर आयरन, कॉपर, निकल, इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर स्टॉक मार्केट बेसिक्स। अब हम फिर स्टॉक मार्केट बेसिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है, अब अभी मैं जा रहा हूँ सोने, 2 3 घंटे सोऊंगा, फिर शाम में उठ के जो भी पेंडिंग काम वगैरह है वो करूंगा। एंड टुमारो अगेन इन द डे टाइम आई विल अपलोड द सैलरी फॉर्म, वो मैं ही कर दूंगा। एंड फिर अगर देखते हैं, आई एम होपफुल दैट अगेन टुमारो ऑल्सो 1 hour 30 minutes और 2 hours लाइक क्लास वी विल टेक, आई विल टेक, एंड वी विल फिनिश दिस वीक बैकलॉग, जो बैकलॉग लग गया है उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल। अब प्लीज, बस क्लास अटेंड करके निकलना इज नॉट योर प्रायोरिटी। ठीक है, जिंदगी की गूढ़ सच्चाई, जिंदगी के गूढ़ रहस्यों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए, एनालाइज कीजिए। भगवान ने आपको एक मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, वाहेगुरु ने आपको एक मौका दिया है, जीसस ने आपको एक मौका दिया है। ठीक है, जिस भी फॉर्म में, जिस भी तरीके से आप एक सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं, उसको, उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है अपनी लाइफ में अपनी चीजों को रिवाइव करने की। जस्ट ट्राई टू डू दैट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है, आप उस चीज को एक बेस्ट तरीके से, बेस्ट मैनर में करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत होगा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। यू विल बी रियली फार अवे, फार लाइक फार 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 फार। ठीक है, तो लाइक दिस आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन। हो सकता है आपने इस सेशन के दौरान थोड़ा लो भी फील किया होगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच एनर्जेटिक टुडे, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। एंड चलो, वी विल अगेन मीट टुमारो। ठीक है, कोई क्वेरी वेरी कुछ भी होगी, अभी 2 दिन मत भेजना। इट स्टार्ट सेंडिंग इट फ्रॉम मंडे। कोई रिप्लाई नहीं करेगा, मैं देखूंगा अभी नहीं, अभी अभी देख भी नहीं पाऊंगा, और टीम रिप्लाई करेगी। आप सैटरडे संडे तो वैसे भी आप लोग कुछ भी पूछना या ये सब तो है नहीं। ठीक है, जस्ट enjoy योर वीकेंड। जिन लोगों का छूट गया है, आई विल रिकॉर्ड दिस रिकॉर्डिंग इन द नाइट व्हेन आई विल रीच हॉस्पिटल। एंड फिर फर्दर, फिर हम लोग कल का जो सेशन होगा होगा तो आई विल अपडेट, नहीं होगा तो भी आई विल अपडेट, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। सॉरी, बाय। रात में सेशंस लेने की आदत तो गुड नाइट करने की आदत होगी, चलिए कोई बात नहीं, ओके, टेक केयर।